Welcome on this live online session, which is going to present with the collaboration of Primavera Institute and logintrainings.com. और आज के इस सेशन के अंदर हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम्स। और आज के इस लेक्चर के जो कंटेंट होंगे वो आपके सामने इंट्रोडक्शन होगा, हु कैन डू दिस कोर्स, कोर्स ओवरव्यू, बेनिफिट्स, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से स्टार्ट करेंगे आज हम। और इससे पहले हम कोर्स ओवरव्यू भी करेंगे और प्रॉपर एक सारी चीजों को टच करते हुए जाएंगे। ओके, सो टोटल आज हमारे एक्सपेक्टेड जो टाइम है इट्स गोइंग टू बी लाइक 55 मिनट्स। सो the first thing, introduction, delay analysis and construction claims management course using Primavera's P6. So my name is Engineer Waqas Ahmed. I have been working since last 10 years in ADNOC Abu Dhabi UAE from 2010 to 2013 as a project management consultant. Then from I have gained experience while working with Aramco in Saudi Arabia from 2013 to 2015. Then again, I get back to UAE and I worked with the onshore oil operations company ADCO Abu Dhabi company for onshore projects from 2015 to 2018. And right now I'm working on CPEC Pakistan projects from 2018 till date. And while doing all these things, I have worked on oil and gas upstream projects, drilling and production projects, island development projects, and road building MEP construction projects, and industrial zone development projects, plant shutdown management, and EPC project management. So that is my experience, and I have been working in all those sectors with a variety of disciplines, but my specific domain was project management, doing planning and dealing with all the contractual things and delay analysis and Primavera P6. So this training medium is a live online Zoom cloud meeting application. Instructor-led training means that I will be with you while you are having this training. I will be answering the questions put by you from your side, and that's why there are question and answers. We are going to prepare one project, then we are going to assume the real situation, why delays are going to happen, and what is the impact of delay on our project. So that is going to prepare a case. Then course credit hours are 12 hours, including assignments and live online classes. There are 2 classes per week and 1 month duration for this course. 12 resource documents, notes in the shape of PDF I will be sharing with you guys. And then at the end of course, participants will able to prepare delay analysis and claims cases, including extension of time, EOT, and monetary claims. And further moving on to the next slide, who can do this course? कौन लोग ये कोर्स कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो लोग भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अपनी अपनी फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो प्लानिंग इंजीनियर्स हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, cost estimate engineer, planning monitoring engineers, construction managers, project managers, and delay analysis and construction claims specialists. All these positions are fit to join this course. So how can you understand and learn professionally? मैं इस चीज को आने वाली स्लाइड्स के अंदर भी एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये कोई एंट्री लेवल इंजीनियर्स का कोर्स नहीं है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे रेलिवेंट है। सो आप इस चीज को कैसे सीख सकते हो, तो इस स्लाइड के अंदर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने जा रहा हूँ। देखें, आपको ये कोर्स सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक अप्रोच का पता होना चाहिए। जब हम किसी भी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करते हैं तो रियलिस्टिक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, इस कोर्स के दौरान इन चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा। जो मेजर लेवल पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट एंड क्रिटिकल पाथ इज द कोर वैल्यू ऑफ दिस कोर्स, बिकॉज आपका डिले का मतलब क्या है? देर हो जाना। तो देर टाइम की टर्म्स के अंदर उसको कैलकुलेट किया जाएगा। और क्रिटिकल पाथ इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर,
और इसके बाद प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारी ग्रिप होनी चाहिए, जो इस कोर्स के दौरान हम डिटेल के अंदर देखने जा रहे हैं। और इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट प्राइमेरा P6 को हम इस कोर्स के दौरान इस्तेमाल करेंगे। तो इस कोर्स के दौरान प्राइमेरा P6 को इस्तेमाल करते हुए हमारे प्लान्स, हमारे रिकॉर्ड्स, हमारी ट्रैकिंग और फिर डिले एंड क्लेम्स के जो हमारे ट्रिक्स होंगे, किस तरह से हमने एक दोबारा से अपने प्रोजेक्ट के अंदर नई चीजों की इनकॉर्पोरेशन करनी है, एक इम्पैक्ट देखने के लिए। तो ये चार एक चीजें हैं जो हमें बड़े मेजर लेवल पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो इस कोर्स के दौरान बड़ी डिटेल के अंदर होंगी। लेकिन आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैं आपको कोर्स कंटेंट भी शेयर करने जा रहा हूँ। कोर्स ओवरव्यू को देखते हैं। सबसे पहले डिले एनालिसिस एंड क्लेम यूजिंग प्राइमेरा P6 ओवरव्यू। सीक्वेंस ऑफ दिस कोर्स देख लेते हैं। डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स यूजिंग प्राइमेरा P6 ओवरव्यू, जो इस स्लाइड के बाद हम देखने जा रहे हैं। इसके बाद आज ही हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट शेड्यूल डेवलपमेंट यूजिंग प्राइमेरा P6, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट ओवरव्यू देखेंगे इस कोर्स के दौरान, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ओवरव्यू देखेंगे, कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स कलेक्शन, यानी कि आप अपनी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो किस तरह से आप अपने काम के डिफरेंट तरह के जो टेम्पलेट्स हैं, डिफरेंट तरह से आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, उनको किस तरह से फॉरवर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड के अंदर किस तरह से लेके आ रहे हैं। बिकॉज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस कोर्स। क्योंकि डिलेज की जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब आप डिलेज को जानने की कोशिश करेंगे कि कब कहां पे किसकी वजह से डिले आया, सो दैट टाइम योर रिकॉर्ड कलेक्शन इज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर डिले स्पेशलिस्ट गाइज। एंड डिले टाइप्स पढ़ेंगे। एक डिले का समझ आ जाती है कि ये डिले कहां पे आया, और उस डिले को फिर कैटेगराइज करेंगे, ये डिले कौन सा डिले है। क्या इस डिले की मद में हमें पैसे क्लेम करने चाहिए, सिर्फ टाइम क्लेम करना होगा, या फिर इसके अलावा हमारे कंपनसेटरी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। इसके अलावा डिले एनालिसिस टेक्निक्स पढ़ेंगे। डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं, इसमें टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस भी इंक्लूड है। और इसके बाद हम देखेंगे ईओटी कैसे तैयार की जाती है। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद और मनी क्लेम्स की रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू प्रिपेयर डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम केस। And moving on to the next slide, delay analysis and claims management has been biggest problem for construction industry, and therefore, if you know right strategy at right time with advanced tools, I mean to say Primavera P6, you will be hired at higher salary, because right now, unfortunately there was COVID-19 and a lot of project across the globe has been halted. Projects के अंदर कोई भी progressive एक मोमेंटम जो होता है प्रोजेक्ट के दौरान वो रुक चुका था, और उस वजह से जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिले एनालिसिस स्टडी है वो बड़े हायर लेवल के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर की जा रही है, क्योंकि हर पार्टी जो है वो इस चीज के पीछे है कि हमें कहीं से कंपनसेशन हो जाए। तो वैसे पहले भी डिले एनालिसिस की बहुत डिमांड है, क्योंकि इसके मद में आप बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स के क्लेम्स कर सकते हो। आपको अगर एक राइट प्रोसेस का पता है, टर्मिनोलॉजीज का पता है, कॉन्सेप्ट्स का पता है, प्लस आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल का पता है। सो हियर वी हैव Whenever, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया कि डिले एनालिसिस की डिमांड क्यों है, लेकिन इन चीजों को एक बैकग्राउंड स्टडी के साथ लेके चलते हैं। जब भी हमने कोई चीज बनानी होती है, इसके अंदर आपकी हाउसिंग सोसाइटीज हो सकती हैं, आपके प्रोजेक्ट में आपके पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, आपके बिल्डिंग MEP प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन हो सकती है, या फिर आपके रोड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। यानी कि आपने इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को भी लेके चलना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले आप उस प्रोजेक्ट को जब लेके चलते हो तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफाइन किया जाता है, उसके डिफरेंट फेजेस को डिफाइन किया जाता है। तो इससे पहले कि इन चीजों को हम और डिटेल के अंदर देखें, हमें ये देखना जरूरी है कि प्रोजेक्ट के प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कितने हैं, ताकि हमें पार्टीज का भी पता चल जाए, ताकि पैरेलल चीजों को लेके चलें और हमें आसानी से चीजों की समझ आनी शुरू हो जाए। तो प्रोजेक्ट के जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट का ओनर होता है उसको क्लाइंट कहते हैं, कंसल्टेंट होता है जो आपके प्रोजेक्ट का इंजीनियर है, जो एडवाइजर है, और फिर जो आपके प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है उसको हम कंट्रैक्टर कहेंगे। ये तीन पार्टीज होती हैं। होता कुछ इस तरह से है कि आपका जो क्लाइंट है वो इंजीनियर या कंसल्टेंट या एडवाइजर को हायर करता है, और ये कंसल्टेंट आपको फिजिबिलिटी, देखें आपने कोई भी प्रोडक्ट बनानी थी, उस चीज को आप साथ साथ लेके चलते हैं। रोड बनाएंगे, या फिर कंस्ट्रक्शन है आपके पावर प्लांट की, या फिर हाउसिंग स्कीम है, या फिर इसके अलावा आपका कोई और प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स को अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज ये आपके एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड कोर्स लोगों के लिए कोर्स है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो 5 आपके
प्रोसेस ग्रुप्स हैं। सबसे पहला PMBOK के मुताबिक इनिशिएट फेज होता है, फिर आपका प्लानिंग फेज है, देन एग्जीक्यूशन फेज, और फिर आपका मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज, and then you have closing phase. So when this client is going to hire some consultant, तो इस फेज को हम कहेंगे इनिशिएट फेज। गेटिंग बैक टू द स्लाइड्स, सो इस फेज के दौरान क्या होता है कि आपका कंसल्टेंट उस प्रोजेक्ट के बारे में फिजिबिलिटी तैयार करके देता है, जिसको हम कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। उससे मजीद आगे जब फिजिबिलिटी तैयार हो जाती है, फिर उससे अगला स्टेप किया जाता है जिसको हम कहते हैं बेसिक इंजीनियरिंग या फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। एंड आफ्टर दैट डिटेल इंजीनियरिंग तैयार की जाती है, एक्सट्रैक्ट क्वांटिटीज एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, एक एस्टिमेट लगाया जाता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट बेस्ड एक इंजीनियरिंग एस्टिमेट तैयार किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशंस तैयार की जाती हैं। देखें, आप अपना घर किसी को देते हो कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जाहिर बात है आप अपनी कुछ कंडीशंस रखते हो कि मुझे इस डेट तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है, मैं इस तरह से पेमेंट करूंगा, अगर कोई कल को नुकसान होता है तो इस तरह से आपने उन चीजों को कंपनसेट करना है। तो इन चीजों को कंडीशंस कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस भी प्रोजेक्ट की साथ साथ कंपाइल की जाती हैं, इसको भी इस कोर्स के दौरान डिटेल के अंदर देखेंगे। और फिर बिड की जाती है। बिड का मतलब कि आप डिफरेंट कंपनीज को, सर्विस कंपनीज को इनवाइट करते हो, उनके साथ शेयर करते हो अपनी कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस, उनके साथ शेयर करते हो अपना इंजीनियरिंग एस्टीमेट प्रॉपर टेम्पलेट्स के साथ। और वो सर्विस कंपनीज आपको अपनी बिड सबमिट करवाती हैं डिफरेंट कॉस्ट के ऊपर, और उनमें से आप कोई एक सर्विस कंपनी को हायर कर लेते हो। और कंसल्टेंट विल गाइड, कंसल्टेंट जो है वो आपको ये कंडीशंस प्रिपेयर करने में भी हेल्प आउट करता है, जो कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर फॉलो की जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसका हम BOQ में आपके साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के लिए, चीजों को रियल सिनेरियो के अंदर लेके चलेंगे। तो सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को प्लान करते हो, उसमें जनरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल होता है। जैसे कि आप बिल्डिंग बनाओगे तो आपको पता होगा सबसे पहले डिजाइन तैयार हो रहा है, डिजाइन से आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन के अंदर जाएंगे, ठीक है। और फिर एक स्पेसिफिक फेज की डिफरेंट बिल्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले आपकी फाउंडेशंस होती हैं, फिर कॉलम्स हैं, फिर आपके बीम्स हैं, जो भी आपका एक प्रॉपर डिजाइन के मुताबिक आइटम बनेगी। तो उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसको हम करेंगे जनरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। सो ये देखें यहाँ पे डिजाइन, एक जनरल जो भी दुनिया के अंदर कोई चीज बन रही है तो सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर उस डिजाइन से एस्टिमेट की जाती है, क्वांटिटीज एक्सट्रैक्ट की जाती हैं ताकि प्रोक्योरमेंट कर सकें, ताकि मटेरियल सप्लाई स्मूथ तरीके से, और कंस्ट्रक्शन फेज इसके बाद किया जाता है। ये प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। प्लानिंग फेज के अंदर ये सारे काम किए जाते हैं। ओके, सो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, दैट इज आवर BOQ, and here you can have, let's say our Islamabad development project is over here and we have these deliverables. Okay, if I'll go into the further, you can find out here the detail of your deliverables. Okay, so we are going to work on these BOQ, on this BOQ. So this is our डेवलपमेंट साइकिल। लाइक आपने इस्लामाबाद सिटी के अंदर एक डिजाइन तैयार हुआ कि इसके अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट के काम होंगे। तो उसमें रोड वर्क्स हैं, रोड वर्क्स के बाद स्ट्रक्चर वर्क्स हैं, वाटर सप्लाई नेटवर्क है, वाटर सप्लाई कनेक्शन चैम्बर्स हैं, और ये डिफरेंट तरह के आपके पास डिलीवरेबल्स हैं। ओके, सो अगेन, सो यहाँ पे भी उन्हीं डिलीवरेबल्स को यहाँ पे लिखा गया है। और कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस होती हैं, ये पहले भी मैं तज़किरा कर चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ प्रोजेक्ट where all stakeholders are bound to follow to deliver project successfully। यानी कि जो आपने कंडीशंस लगानी होती हैं वो एक कानून होता है, एक लॉ होता है। उस लॉ को जो भी आपकी प्रोजेक्ट की स्टेक होल्डर पार्टीज होती हैं उन्होंने उसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उसको फॉलो करना होता है। तो सब देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स व्हिच विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर डीप स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट नेचर। आपने बिल्डिंग जो भी उसकी फिजिबिलिटी तैयार की गई है उस फिजिबिलिटी को मद्देनजर रखा जाता है, उसकी डिटेल डिजाइन को मद्देनजर रखा जाता है, उस जगह के अंदर जो भी एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, वहां पे इन्वायरमेंट किस तरह का है, हर चीज को मद्देनजर रख के कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो है वो उसका फाइनलाइज किया जाता है। इसी कोर्स के दौरान हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर जाके डिटेल के अंदर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स, प्रोक्योरमेंट और आपकी बिडिंग के हवाले से कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट टाइप कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो हायर लेवल पे थोड़ी सी एक ओवरव्यू को देखते हुए मैं आपको चीज बताता चलूं। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होती है उसके अंदर दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दो तरह की कंडीशंस होती हैं। एक होती हैं आपकी जनरल कंडीशंस जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फॉलो की जाती हैं, जो कि सेम रहती हैं, और दूसरी पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट
को जब एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, जब प्लान करने जा रहे हो, जब उसको बारे में काम करने जा रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। तो कुछ कंडीशंस को आप अपने प्रोजेक्ट की सिचुएशन को देखते हुए चेंज कर लेते हो, मॉडिफाई कर लेते हो, ताकि आपका प्रोजेक्ट स्मूथ तरीके से चलता रहे। जैसे कि पेमेंट मेथड्स हो सकते हैं, वो आप थोड़े से चेंज कर लें। वेदर कंडीशंस आपकी टफ हैं, तो जनरल कंडीशंस में अगर एक तरीका लिखा हुआ तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, और जब वो चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, आपके प्रोजेक्ट के साथ कंपैटिबल हो जाएगा, उसको हम पर्टिकुलर कंडीशंस का हिस्सा बनाएंगे। फिर डेफिनेशंस होती हैं, इंजीनियर की क्या डेफिनेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, जो भी हमारे प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, वो सारी चीजें हर प्रोजेक्ट के लिहाज से पर्टिकुलर कंडीशंस में होंगी, ठीक है। और प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके अंदर एक्सेप्टेंस लेटर और फिर आपकी इस तरह की चीजें होती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ वर्क, बीओक्यू, प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। आपके प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके ये वाले आइटम्स होते हैं। माइलस्टोन्स के बारे में तज़किरा किया होता है, ये भी हम डिटेल के अंदर जब प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे प्राइमरी 6 के अंदर, तब हम माइलस्टोन्स को भी डेवलप करेंगे। कंस्ट्रेंट्स होते हैं क्लाइंट की तरफ से या आपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से, या कुछ कंस्ट्रेंट्स आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आप लगाना चाहते हो टाइम के हवाले से, कॉस्ट के हवाले से, तो आप वो कंस्ट्रेंट्स भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हो। प्रोजेक्ट टाइम लाइन डिफाइन करते हो, कितने टाइम के अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड या बजटेड कॉस्ट जो होती है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होती है। पेमेंट मेथड्स, आप ठेकेदार को या कॉन्ट्रैक्टर को कितने टाइम के बाद, कितनी प्रोग्रेस अचीव करने के बाद, क्यूए क्यूसी के क्या प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से पेमेंट मेथड्स जो है वो प्रोसीड करेंगे। प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट होती है, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्क जो है वो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अगर रिस्क की कंडीशन आ जाती है तो उसको आप किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि डिफरेंट और सिचुएशंस को डील करना है। तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर डिफरेंट तरह से चीजें हैं, जब लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को पढ़ने के साथ साथ। और पेमेंट मेथड्स अगेन। सो इसके बाद जब आपकी ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाती हैं, आपका डिजाइन फाइनल हो गया, आपकी क्वांटिटीज निकल आई, आपने एस्टिमेशन कर लिया, आपके पास बजटेड कॉस्ट आ गई, और अब फिर उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनलाइज कर लिया, तो ये चीजें फ्लोट करने के बाद आपका बिडिंग स्टेज आता है, इनविटेशन टू टेंडर भी कह सकते हैं। और इसके बाद ये आपके पास एक टेम्पलेट है, मैं आपके साथ एक्सेल शीट भी शेयर करूंगा जो इंजीनियरिंग एस्टिमेट का एक टेम्पलेट है। तो इस टेम्पलेट को आप अपनी डिफरेंट तरह की डिस्क्रिप्शंस, जो भी आपने काम करवाने हैं उनको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे उन कामों के यूनिट्स आ जाएंगे, यहाँ पे उनका रेट लग जाएगा, यहाँ पे उनके टोटल काम जो करना है वो क्वांटिटी आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट की आ रही होती है इस तरह से, जिस तरह से इससे पहले हमने बीओक्यू को एनालाइज किया। और इसके बाद ये जब बिडिंग हो जाती है, जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है, तो आपका स्टार्ट होता है प्लानिंग फेज एज पर आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स डिस्क्राइब्ड बाय पीएम बॉक्स 6 एडिशन। प्लानिंग फेज के अंदर क्या होता है कि आपने ये 10 से एक चैप्टर्स हैं, ये आपने अप्लाई करने होते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको प्रोजेक्ट मिल चुका है, आपके पास प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, और आपके प्रोजेक्ट की अब प्लानिंग स्टार्ट होगी। और सबसे पहला काम आपने करना होता है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, ठीक है। लिखा प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों मैं स्कोप मैनेजमेंट कह रहा हूं। सबसे पहले हम स्कोप मैनेजमेंट करते हैं, फिर टाइम या शेड्यूल मैनेजमेंट करेंगे, और उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट, देन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड देन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। जब आप प्रॉपर एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले जब प्लानिंग फेज के अंदर अपने काम को प्लान करोगे, तो पिमबॉक के मुताबिक आपने ये सारी चीजें अप्लाई करनी है प्लानिंग फेज के अंदर। तो स्कोप मैनेजमेंट, इस कोर्स को देखते हुए हम स्कोप मैनेजमेंट को डिटेल के अंदर करेंगे, टाइम मैनेजमेंट को करेंगे, एंड देन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट विच इज कंसर्निंग मोर क्लोजली विद दिस कोर्स, ठीक है। बाकी चीजें भी मैं आपको एक ओवरव्यू के तौर पे दूंगा, लेकिन अगर आप चूंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये कोर्स उन लोगों के लिए जो 2 से 3 साल प्लानिंग का काम कर चुके हैं और बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग को समझते हैं, और प्राइमवेरा के ऊपर काम करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप आराम से प्राइमवेरा को भी अडॉप्ट कर लेते हो। तो ये उन लोगों के लिए कोर्स है, इसलिए अगर आप इन सारी चीजों को भी सीखना चाहते हैं, अगर आप रियलाइज करते हैं कि आपको ये चीजें भी सीखनी है, तो मेरे ख्याल में आपको फिर हमारा प्राइमवेरा P6 EPC प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट कोर्स भी लेना चाहिए। इस कोर्स के दौरान हम इंशाल्लाह हर चीज
को थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस ये है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जिम्मे में जैसे प्रोजेक्ट आ जाता है उसको प्लान कर लिया जाता है, उसकी स्कोप मैनेजमेंट और शेड्यूल मैनेजमेंट और फिर प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट किस तरह से डिले एनालिसिस के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू के अंदर ये बताता चलूं, ये पॉइंट्स बार बार डिस्कस होंगे कि एक प्रोजेक्ट को, रियलिस्टिक प्रोजेक्ट देखें, एक चीज होती है वो हवा में होती है, ठीक है, उसकी कोई एक्चुअल ग्राउंड्स नहीं होती। प्राइमेरा 6 चाहे बहुत अच्छा आता हो, लेकिन एक चीज जो डिले एनालिसिस स्पेशलिस्ट लोगों को मैं बार बार एक सुजेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने सबसे पहले अप्रोच करनी है कि एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट शेड्यूल किस तरह से डेवलप होगा। क्योंकि जब हम डिले एनालिसिस की बात करते हैं तो डिले एनालिसिस तभी हो सकता है जब आपने अपने प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बेस्ड सिनेरियो के ऊपर डेवलप किया हुआ है। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फ्लॉज हैं, कुछ अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इनमें से कोई चीज मिसिंग है, सो देन आई गेस के डिले एनालिसिस करने के बावजूद भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे जो कि डिले एनालिसिस का एक मकसद होता है। तो सबसे पहली चीज क्या, वर्क स्कोप विद प्रॉपर डब्ल्यूबीएस टेक्निक। आपने अपने प्रोजेक्ट की जो डिटेलिंग करनी है, ये भी हम अभी आज थोड़ा सा टच करेंगे। डब्ल्यूबीएस क्या होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अपने प्रोजेक्ट को ब्रेकडाउन करना होता है और उसको प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक के लिहाज से कोई भी चीज आपकी मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बड़ी दो बेसिक चीजें हैं। लॉजिकल सीक्वेंस एंड नेटवर्किंग ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि हम जब अपने प्रोजेक्ट के शेड्यूल को डेवलप करेंगे तो हमारे एक्टिविटीज के दरमियान ऐसे नहीं हो ब्लाइंडली हमने सिर्फ एक सीक्वेंस दिया हुआ है और नेटवर्किंग की हुई है, बल्कि हमारे प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज के दरमियान जो आपस में रिलेशनशिप होगा एक्टिविटीज का, वो एक बड़ा लॉजिकल होना चाहिए, उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ताकि हमारे डिले एनालिसिस को यानी कि कोई भी उसके ऊपर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। सबमिटल एंड अप्रूवल, हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हम जिन प्रोजेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन फेज ही चीज नहीं होती। आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, आपकी डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप तीन पार्टीज होती हो, तीनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हो, डिफरेंट तरह के लेटर्स लिखे जाते हैं, ईमेल्स लिखी जाती हैं। तो जितने भी सबमिशंस होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, इनका प्रॉपर एक सिंक्रोनाइज्ड प्लान होना चाहिए। प्राइमेरा 6 के अंदर पूरे प्लान की सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए ताकि डिले एनालिसिस को ट्रैक करते हुए हमें अच्छे तरीके से पता चले कि कहां पे फ्लॉ आया, कहां पे एक लूप होल आया जिसको हमने पकड़ना है। प्रोक्योरमेंट, जो भी मटेरियल सप्लाई आपने अपने प्रोजेक्ट के दौरान प्लान करनी है, उसको कंडक्ट करवाना है, उसको कंट्रोल करना है, उसकी पूरा जो प्रोसेस होगा कंपनी बेस्ड या आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जो भी प्रोसेस होगा, उसकी सिंक्रोनाइजेशन भी आपके प्रोजेक्ट के साथ होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन फेज के साथ। फिर आपका जो क्रिटिकल पाथ है उसका बहुत अच्छे तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए, फ्लोट का पता होना चाहिए, फ्री फ्लोट का पता होना चाहिए। और ये जो क्रिटिकल पाथ होगा ये आपके रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने अपनी मर्जी से ड्यूरेशन दिया और उस ड्यूरेशन की बेस पे आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने रिसोर्सेज हैं। तो ये चीज भी डिस्कस करेंगे, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट भी आ जाएगी। तो हर चीज को हम देखते जाएंगे। एप्लीकेशन, अब आप शेड्यूल कंप्रेशन टेक्निक्स, आपका प्रोजेक्ट 2 साल का था, आप प्लान कर रहे हैं 2 साल 6 महीने का बन गया। अब आपने उस 6 महीने को कम करना है तो आप शेड्यूल कंप्रेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे भी आप ख्याल रखेंगे कि रिसोर्सेज को हवा में नहीं ले जाना, रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो एक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर है वो आपके पास मेंटेन रहे, ठीक है। और इसके बाद अपने जो भी आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अगर ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, तो उन फैक्टर्स को भी आपने रखना है। ऐसा ना हो कि आप उन फैक्टर्स को कंसीडर ना करें और एग्जीक्यूशन फेज के अंदर वो बारिशें हो रही हैं, तो वो फिर बिला वजह का आपका यानी कि डिले एनालिसिस का यानी कि कोई फायदा नहीं होता वहां पे। तो इन चीजों को भी प्लान करते हुए आपने रिस्क मार्जिन के अंदर कंसीडर करना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे मैं आपको मॉडल एक प्रेजेंट करने जा रहा हूँ ताकि आपके जेहन में एक कॉन्सेप्ट बन जाए। सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से प्लान करने के लिए हमें 2 चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर स्कोप मैनेजमेंट करते हैं। स्कोप मैनेजमेंट यानी कि अपनी एक्टिविटीज़ को लोड करेंगे, उन एक्टिविटीज़ को आपस में रिलेशनशिप देंगे और फिर उन एक्टिविटीज़ को हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन असाइन करेंगे और उस ड्यूरेशन असाइन करने के लिए हम रिसोर्स एनालिसिस करते हैं। जब ये 2 काम जो आपको पर्पल कलर के बॉक्सेस के अंदर नज़र आ रहे हैं, जबकि ब्लू कलर में उनकी फीडबैक है, किस तरह से इनको प्रिपेयर किया जाता है। तो हमें आउटपुट क्या मिलती है, हमें एक्टिविटीज का एक नेटवर्क मिलेगा।
और इस नेटवर्क को जब प्राइमेरा P6 के ऊपर लेके चलेंगे तो हमें क्रिटिकल पाथ मिलेगा, और क्रिटिकल पाथ से हमें अपने प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन या शेड्यूल मिलेगा। ये प्राइमेरा 6 हमें ऑटोमेटिकली बताएगा कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, कौन सा क्रिटिकल पाथ है, और क्रिटिकल पाथ के ऊपर ही आपके पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन डिपेंड कर रही होती है। इसलिए डिले एनालिसिस के अंदर ये मॉडल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। Okay, so moving on to the next slide. In construction industry, there are three major constraints to follow to deliver projects successfully. ये हमारे तीन major constraints हैं। टाइम के अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है, बजट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, और प्रॉपर जो भी स्कोप रिक्वायर्ड था क्लाइंट की तरफ से, ये तीन कंस्ट्रेंट्स हमारे प्रोजेक्ट की कामयाबी का तयन करते हैं। ओके, एंड एग्जीक्यूशन फेज जब स्टार्ट होता है, आप साइट के ऊपर रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर देते हो और उसके मुताबिक आपका प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो जाता है। ओके, और इसके बाद जनरल डिले रीजंस, अब आपका एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अब आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिले आने शुरू हो गए, ठीक है, इनकी वजूहात क्या होती हैं, आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनको डिटेल के अंदर देखेंगे। अभी हायर लेवल पे थोड़ा सा ओवरव्यू टच लेते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जब आप बनाते हो तो उनके अंदर एरर्स आ जाती हैं, ओमिशंस आ जाती हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। कुछ डिजाइन बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो गलती लग जाती है, ठीक है, तो कुछ रीजंस ये हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्टर कॉज्ड डिले फॉर रीजन अंडर देयर कंट्रोल। कंट्रैक्टर ने टाइम के अंदर अपनी मशीनरी को मोबिलाइज नहीं किया, कंट्रैक्टर ने टाइम के ऊपर स्किल्ड लेबर को हायर नहीं किया, कंट्रैक्टर ने टाइम के ऊपर अगर उसकी प्रोक्योरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। इस तरह के रीजन हो सकते हैं। डिलेज फॉर रीजंस बियॉन्ड द कंट्रैक्टर और ओनर्स कंट्रोल। वो कुछ ऐसे डिलेज आ जाते हैं जिनके अंदर ना तो कंट्रैक्टर का कसूर होता है और ना ही ओनर का कसूर होता है, बल्कि कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस या जिनको फोर्स मेजोर कहते हैं, यानी कि बारिश हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। और इसके बाद ओनर काज डिले फॉर रीजंस अंडर देयर कंट्रोल। ओनर की वजह से कुछ डिलेज आ जाते हैं, जैसे कि ओनर को स्कोप डिफाइन करते हुए उसने बाद में स्कोप चेंज कर दिया, या कैश फ्लो, कंट्रैक्टर को पैसे देने थे उसकी एक कमिटमेंट के मुताबिक, लेकिन वो कैश फ्लो स्मूथ तरीके से मेंटेन ना रखा गया, कंट्रैक्टर के पास पैसे नहीं पहुंचे, पेमेंट नहीं पहुंची और कंट्रैक्टर ने काम रोक दिया, उस वजह से भी। तो ये ओनर की साइड पे। तो ये एक ओवरव्यू है कि एक जनरल एक डिले रीजंस क्या होती हैं। और इसके बाद पर्सनालिटी कन्फ्लिक्ट, सम टाइम आप डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही होती हैं, तो उसके अंदर सम टाइम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कुछ व्यूज का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। सम टाइम आप किसी भी एक चीज को यानी कि जैसे कि आपका रोड का प्रोजेक्ट है, आपको लैंड एक्विजिशन चाहिए, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है उसके अंदर। तो इस तरह की चीजें भी आपकी एक डिले का वजह बन सकती हैं। If some activity is delayed due to certain reason, then if that activity is on critical path, it will have potential to delay project completion date. क्रिटिकल पाथ के अंदर यानी कि क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट का एक पाथ होता है, जब हम इसको डेवलप करेंगे तो उसको डिटेल के अंदर देखेंगे। जो भी आपकी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ के ऊपर होती है, अगर वो एक्टिविटी आपकी लेट हो जाती है तो उसके अंदर पोटेंशियल होता है वो आपके प्रोजेक्ट को डिले कर दे। क्रिटिकल पाथ आपके प्रोजेक्ट का डायनामिक फीचर होता है जो कि चेंज होता रहता है। कैसे? इससे पहले एक मॉडल मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें क्रिटिकल पाथ कहां से निकल रहा है, एक्टिविटीज के आपस में रिलेशनशिप और ड्यूरेशन। जैसे जैसे ड्यूरेशन बदलता रहेगा, एक्टिविटीज के आपस में रिलेशनशिप बदलते रहेंगे। बदलते तो नहीं है, लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन फेज को देखना है। प्रेफरेंसेस थोड़ी सी बदल रही होती हैं, तो आप इन चीजों को अगर चेंज करते हो तो आपका क्रिटिकल पाथ भी चेंज होता है। और अगर क्रिटिकल पाथ के ऊपर किसी चीज को आप डिले कर देते हो तो आपके प्रोजेक्ट की एक टाइमलाइन एक्सीड हो जाती है। यही टाइमलाइन जब एक्सीड होती है तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आपने एक प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर करना था, उसमें आपने 2 साल की सैलरीज देनी है अपने स्टाफ को, 2 साल के लिए मशीनरी को हायर करना है, 2 साल के लिए मटेरियल आपने बाय करना है। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट इस टाइमलाइन को एक्सीड करता है, अब आप 2.5 साल के लिए मशीनरी के लिए पे करोगे, 2.5 साल के लिए स्टाफ को पे करोगे, मटेरियल खराब हो सकता है आपका ओवर टाइम की वजह से। तो ये चीजें कौन बियर करेगा? यही बेसिकली आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, डिलेज होते हैं। डिस्प्यूट्स की शक्ल में फिर डिलेज को एनालाइज किया जाता है। तो इसके अंदर डिले कैन बी डिफाइंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डिले एनालिसिस के बारे में है। डिले इवेंट को आपने कैसे डिफाइन करना है, तो इसके अंदर दो चीजों का बड़ा एक इंपॉर्टेंट
दो वर्ड्स आने चाहिए आपकी डेफिनेशन के अंदर, एक एक्सटेंड और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि डिले कैन बी डिफाइंड एज इवेंट अकर्ड अलोंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कोर्स, यानी कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन के साथ ये वकू पजीर हो जाता है, विच हैव पोटेंशियल टू एक्सटेंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपने प्रोजेक्ट 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट करके 31 दिसंबर 2019 को डिलीवर करना था। अब आपके प्रोजेक्ट के दौरान एक ऐसा इवेंट हुआ, वो ड्राइंग भी हो सकती है डिले, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, वो इवेंट कुछ भी हो सकता है। इससे पहले मैंने उस इवेंट की कैटेगरीज बता दी हैं। तो पुअर प्रोग्रेस भी हो सकती है। तो वो इवेंट जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंप्लीशन डेट क्या है, 31 दिसंबर 2019, उसको क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा। हो सकता है वो मार्च के अंदर अब आपका प्रोजेक्ट जो है वो जाके कंप्लीट हो। तो उस इवेंट की वजह से जो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है डिले की शक्ल में, वो आपका डिले कहलाता है वो इवेंट। और इसके बाद this extension in project timeline will cause to rent out machinery or services for extra time period leading to cost overrun। ये जो एक्स्ट्रा टाइम अब आपका प्रोजेक्ट, ये अगली स्लाइड के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको अच्छे तरीके से। ये देखें, ये मेरे प्रोजेक्ट का एक एस कर्व है। चूंकि आप लोग एक 2 से 3 साल एक्सपीरियंस्ड प्लानिंग इंजीनियर हैं, तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा। ये मेरा एक प्लान्ड प्रोजेक्ट प्लान्ड एस कर्व है, ठीक है। ये हमारी कम्युलेटिव प्रोजेक्ट प्रोग्रेस है, ये मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये हमारे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है। हमारा प्रोजेक्ट 1 मई 2019 से सितंबर 2019 तक का है। और ये हमारा एस कर्व ब्लू कलर का इसको प्लान प्रोजेक्ट प्रोफाइल को शो कर रहा है। जबकि रेड कलर का प्रोजेक्ट, अगर हम अगस्त की बात करें, तो यहाँ पे हमारी ये एग्जीक्यूशन फेज का प्रोफाइल है। और इसको अब हम अपनी करंट जो परफॉर्मेंस है उसको कंटिन्यू करें, तो ये हमारा प्रोजेक्ट जाके खत्म होगा एक्चुअल बेसिस में दिसंबर 2019 में। तो ये जो 3 महीने हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट का डिले है। यानी कि हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था एज पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सितंबर 2019, बट ड्यू टू पोर परफॉर्मेंस, ड्यू टू डिले इवेंट्स, this project has been extended till December 2019. So for these extra 3 months, October 2019, November and December, who is going to bear the extra rent, extra wages for the resources? So that is the focus, that is the main perspective of this course. We have to investigate first delays, then we have to categorize them, then we have to find out which party is going to pay for that compensation, either contractor, client or consultant. Okay, so moving on to the next slide। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये आपके प्रोजेक्ट का प्लान है। और ये गैंट चार्ट की शक्ल में मैं आपको शो करने जा रहा हूं, ताकि एक ओवरव्यू की शक्ल में आप एक कोर्स को एक स्टोरी की शक्ल में अपने माइंड के अंदर रख लें। और फिर इंशाल्लाह जब हम पार्ट बाय पार्ट इन चीजों को पढ़ेंगे, सो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। सो ये देखें, ये हमारे जो प्रोजेक्ट अभी आपको सामने नजर आ रहा है, ये हमारे प्लानिंग फेज के मुताबिक हमारा प्रोजेक्ट है, जो 60 दिन के अंदर हमने कंप्लीट करना है। रेड कलर की एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ को शो कर रही हैं, जबकि ग्रीन कलर की एक्टिविटीज हमारे नॉन क्रिटिकल पाथ को शो कर रही हैं। सो हमारा जैसे ही मंथली यानी कि एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होता है, तो एग्जीक्यूशन फेज के मुताबिक हमारी जो पहली एक्टिविटी है, रियल सिनेरियो के मुताबिक, यू कैन सी दैट इट हैज एक्सटेंडेड इट्स plan date. As per planning phase, this activity was supposed to start from this day and supposed to end up on 15th day. But on actual grounds, this activity has been started 2 days later than planning date and then extended up to 24th day. सो इस ये क्रिटिकल पाथ के ऊपर एक्टिविटी थी, ये एक्टिविटी डिले हो चुकी है। अब इस एक्टिविटी की वजह से अगली एक्टिविटी भी आगे पुश हो जाएगी, फिर मजीद अगली एक्टिविटी आगे पुश हो जाएगी, एंड देन योर लास्ट एक्टिविटी इज गोइंग टू एंड अप ऑन 65th डे। सो दैट इज योर प्रोजेक्ट एक्चुअल कंप्लीशन डेट। ओके, एंड दिस रेंज इज योर डिले क्लेम। यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट प्लान था, आपके प्रोजेक्ट की कंट्रैक्चुअल जो वर्किंग डेज थे वो 60 थे। आप इसको नंबर ऑफ डेज की शक्ल में भी देख सकते हैं, इसको आप डेट्स की शक्ल में भी देख सकते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ये 5 दिन का जो एक डिले आया, वो डिले आपने इन्वेस्टिगेट करना है, उसको अच्छे तरीके से समझना है। ये सारी चीजें तभी होंगी जब अच्छे तरीके से आप प्राइमरी 6 को भी साथ साथ सीखेंगे।
So moving on to the next slide, यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्प्यूट एंड कन्फ्लिक्ट्स, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इस कोर्स का हिस्सा होगी। इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन प्रोजेक्ट इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड ऑन टाइम, अब आपको मैंने थोड़ी सी एक लॉजिक बता दी कि एक क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो एक्टिविटीज होती हैं वो जब डिले होती हैं तो वो आपके प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेट है उसको एक्सीड कर देती हैं। तो जब आपका प्रोजेक्ट टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं होता तो कॉस्ट ओवररन होते हैं, कंट्रैक्टर को ज्यादा पैसे ये बियर करने पड़ते हैं। और देन देयर इज अ डिमांड ऑफ स्किल्स टू एनालाइज प्रोजेक्ट डिले क्लासेस एंड फाइंड आउट हु इज रिस्पांसिबल फॉर डिले इवेंट्स फ्रॉम फॉलोइंग पार्टीज। जो आपकी उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टेक होल्डर्स हैं, क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, कंट्रैक्टर है, इन तीनों पार्टीज को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इनके कंटेम्परस जो रिकॉर्ड्स हैं उनको देखा जाता है और एक डिले एनालिसिस कंडक्ट करवा के एक पेनल्टी जिसके सर पे आती है उसको पेनलाइज किया जाता है। ओके, देन बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स, हाई सैलरी, ऑनलाइन अर्निंग, प्रोफेशनल जॉब्स। आज के दौर में डिले एनालिसिस इज वेरी डिमांडिंग प्रोफेशनल स्किल्स यूजिंग प्राइमरी 6। और ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से, आप फाइवर अपवर्क के ऊपर जाके भी अपना अकाउंट बना सकते हो और जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो अपने वहां पे केसेस अपलोड करती है, आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो और आप उनको ऑनलाइन काम करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और प्रोफेशनल जॉब मिल जाती है, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा बन सकते हो। एंड आफ्टर दैट the fifth content is the project schedule on Primavera P6. So दोबारा इसको देख लेते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट नॉलेज एरियाज हैं, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को देखेंगे अपने प्राइमरी P6 के ऊपर, इसको प्लान करते हैं। और इसके बाद जो शेड्यूल मैनेजमेंट है, स्कोप मैनेजमेंट करेंगे और शेड्यूल मैनेजमेंट। शेड्यूल मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, ये चीजें हमारे इस कोर्स का डायरेक्ट पार्ट होंगी, डिफाइन एक्टिविटीज। यानी कि स्कोप मैनेजमेंट के अंदर हम WBS देखेंगे, WBS को कैसे डेवलप किया जाता है। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द प्रोसेस। ये देखें, ये हमारा एक जो प्रोजेक्ट है जिसका हमने BOQ में थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया था, ये हमारी चीज है जो हमने डेवलप करनी है और ये शीट मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इस लेक्चर के बाद। और इसके अंदर हमने इंडस्ट्री बेस्ड एक प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट किया क्योंकि हमने प्रॉपर एक डिले एनालिसिस बेस्ड जो एक प्राइमरी P6 के अंदर एक प्रोजेक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करना है। और यहाँ पे आप देखिए हमने अपने प्रोजेक्ट के दो हिस्से बना लिए हैं जिसमें आप देख सकते हैं एक हमारे सबमिटल एंड अप्रूवल्स हैं। ये हमारा प्रोसेस होगा जिसमें इंजीनियरिंग डिलीवरेबल्स होंगे, प्रोक्योरमेंट डिलीवरेबल्स होंगे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरेबल्स होंगे और फिर कंस्ट्रक्शन फेज होगा। उसके अंदर हमने अपने BOQ को डिफरेंट स्टेजेस पे जाके ब्रेक डाउन किया हुआ है। ये हमारी स्कोप मैनेजमेंट होगी। स्कोप मैनेजमेंट चूंकि आप ऑलरेडी तीन एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको आइडिया होता है कि स्कोप मैनेजमेंट के अंदर WBS की टेक्निक्स होती है। WBS के अंदर मजीद हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं अनलेस अंटिल वी विल फाइंड आउट एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल आपके प्रोजेक्ट का सबसे लोएस्ट लेवल होता है। जब हम स्कोप को डिफाइन कर लेंगे प्राइमरी 6 के अंदर, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू प्राइमरी 6 डैशबोर्ड सो दैट वी कैन जस्ट डेवलप आवर प्रोजेक्ट फाइल। ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट फाइल डेवलप कर लेते हैं। I will just go into file, click on this new button. There would be a new file for me. I have to define, मुझे अपने प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट एलोकेट करना है सबसे पहले। So I'll go for EPC and this is the department of my organization in which I want to put my project file. Next मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इस्लामाबाद कंस्ट्रक्शन सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, and here the full name, keeping this thing in my mind that you guys know each and everything at this level. Islamabad construction development project and click on this next button. Our project is going to start from 1st of January, or let me check, 1st of January 2019. And when we are going to load project file at this level, I think we should not apply any constraint to our project files because it will create some problem while developing critical paths. So keep it as it is while doing our project scope management, time management. Then we have to correlate our end date with our contractual finish date. So that would be more suitable way to define your project, to develop your project on Primavera P6. Then click on this next button.
Here you have to provide Primavera P6 your team. So at this level we have not even developed our team, so keep it as it is. Next, then you have to go for this as the formality. Click on next. Congratulations, you have made a new project file, and click on this finish. Now you are going to open this project file. It's very simple thing. You have to go again in file, then click on this open button, and you will find EPC project. Here in this department you have your project file. This is your project file ICDP. Click on this open button, and now you have to start with your scope management. I will go on procurement management and contract management in the next lecture, but right now I think that I should start with Primavera P6 as well after the overview of delay analysis and construction claims. So that's why I'm on Primavera P6. But आप इस तरह से नहीं समझना कि बाद में हम पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट को बाईपास कर रहे हैं। ये अगले लेक्चर के अंदर हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव चीजें करेंगे। कंट्रैक्ट मैनेजमेंट भी एक डिस्क्रिप्टिव चीज है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस भी उसी तरह से है। तो एक सॉफ्टवेयर को अंदर लेके आएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होता है, और साथ साथ हमने एक प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, वो चीज भी पैरेलल लेवल पे होती जाएगी। ओके, सो while having a scope management process at this stage of planning phase, यहाँ पे हम अपने WBS की मदद से WBS कैसे जाना है, Primavera 6 के अंदर प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे WBS, and then you will be given two windows. One is activities window and one is WBS window. WBS window को हम break down करेंगे. I'll share with you this industry based process. ये देखें submittal and approvals, और फिर मजीद इनको ब्रेक डाउन करके क्यों इस तरह से ब्रेक डाउन करना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि हमें अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिले एनालिसिस को स्टडी करना है। तो अगर अपने प्रोजेक्ट के डिले एनालिसिस को हमने इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से डिफरेंट तरह की टेक्निक सप्लाई हो सकती है, तो हमारे प्रोजेक्ट के कंटेम्पररी रिकॉर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वही हमें बताएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ पे डिले हुआ। अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डिजाइन, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है डिजाइन के बारे में, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो, और प्रोक्योरमेंट के बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके प्रॉपर फेजेस की शक्ल में हमने प्रोसेस जो है वो प्राइमरी P6 के अंदर करना है। ठीक है, और मैं पूरे ये कंप्लीट प्रोजेक्ट को लेके चलूंगा जिसमें इंजीनियरिंग, डिजाइन है, प्रोक्योरमेंट है और कंस्ट्रक्शन है। So I'm going to share with you Primavera 6 dashboard, and here I will divide this main project title into two: submittal and approvals. आप प्री कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, it is going to vary company to company, but the main core concept is the same. Submittal and approvals आपके, and then your second part is, 1 minute, okay, group and sort by default, okay. Then the second one is construction phase. ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन के काम होंगे। सबमिटल एंड अप्रूवल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन फेज, या कंस्ट्रक्शन डिलीवरेबल भी लिख सकते हैं। अब मजीद हम पहले सबमिटल एंड अप्रूवल्स को ब्रेक डाउन करेंगे एज पर आवर process given in this BOQ. It's not part of BOQ, it is the process development of your organization. ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस डेवलपमेंट, एक अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी आपकी कंपनी के अंदर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के आगे मजीद ब्रेकडाउन है। जिस तरह से आप प्लानिंग करके इसको ट्रैक करेंगे, आपकी ट्रैकिंग की यहाँ पे माइलस्टोन्स आप देख रहे हैं, आप इनसे फेमिलियर होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे माइलस्टोन्स क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये प्रॉपर ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज भी मद्देनजर रखी जाएगी कि प्राइमरी 6 के अंदर ही हमने इन चीजों को डेवलप करना है। तो यहाँ पे सबमिटल एंड अप्रूवल्स के बाद मैं सबमिटल एंड अप्रूवल्स के अंदर दो जो मजीद इसके फेजेस बनाऊंगा: इंजीनियरिंग डिलीवरेबल, प्रोक्योरमेंट डिलीवरेबल एंड कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरेबल। सो आई विल मेक कॉपी पेस्ट, इट विल टेक टाइम, इट्स काइंड ऑफ just copy paste. And then the second thing, again I'll click on submittal and approvals, and here I have procurement. I'll make copy and sharing with you Primavera P6 here, and then again submittal and approvals, click on this add button, and sharing with you this Control C, and then okay. So now making sequence, engineering deliverable is on the top, procurement mid में कर लें, और construction contract and documents जो भी उनके submissions हैं और approvals हैं वो भी आप इसके अंदर कर लें। ठीक है, ये हमारे submittal and approvals हो जाएंगे। अब इनको मजीद 1 by 1 हमने इस शीट के मुताबिक करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स है।
ओके, सो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम यानी कि अपनी कंपनी के मुताबिक भी फॉलो करेंगे, आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी फॉलो कर रही है उसके मुताबिक भी हम देख सकते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। तो इसके अंदर इंजीनियरिंग डिलीवरेबल्स को मजीद आगे मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। आई विल शेयर विद यू प्राइमवेरा 6 इंजीनियरिंग डिलीवरेबल को क्लिक करके ऐड का बटन, और यहाँ पे ये देखिए इसका सबलेट होता जाएगा। जिस तरह से मैंने एक्सेल के अंदर चीजें बनाई हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे लेवल्स होंगे, हर चीज का एक सब लेवल होगा, उसको भी मजीद डिवाइड किया जा सकता है। जब आप किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, उसको क्लिक करके ऐड का बटन दबाएंगे तो उसका सबलेट जनरेट हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग डिलीवरेबल के अंदर माइलस्टोन्स का हमेशा से किसी भी चीज के अंदर सबसे पहले जो वर्क पहली उसकी चीज होगी वो माइलस्टोन्स बनाए, क्योंकि ये एक टेक्निक ऐसी है, शायद आप कर रहे हो या शायद आप ना कर रहे हो, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप अपने एग्जीक्यूशन फेज के अंदर जब डिले एनालिसिस की चीजें कर रहे होते हैं, तब आपने एक्चुअल लेवल के ऊपर चीजों को इनकॉर्पोरेट करना होता है। जो डिले एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, वो साइट के ऊपर जाके पुरानी प्रोग्रेस उठाता है, उसके मुताबिक डेटों को जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक है। रीवर्किंग भी करनी पड़ जाती है। तो अगर डिले एनालिस्ट माइलस्टोन्स हर डिलीवरेबल के जनरेट नहीं करेगा, प्लानिंग फेज के अंदर थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ा सा लिबोरियस काम होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आपके लिए एवरग्रीन काम हो जाता है, आपके लिए इजी काम हो जाता है। आप बड़े आसानी से चीजों को देखिएगा जब हम एग्जीक्यूशन फेज के अंदर जाके चीजों को कर रहे होंगे, सो दैट टाइम माइलस्टोन्स विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो यहाँ पे माइलस्टोन्स इंजीनियरिंग डिलीवरेबल्स को मजीद हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। यहाँ पे सबमिटल्स, ये मैं माइलस्टोन्स को डिटेल के अंदर बताऊंगा, और फिर चूंकि इसी को इंजीनियरिंग डिलीवरेबल्स की अप्रूवल हो जाएंगे, अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे ना अलग अलग अप्रूवल्स, और इसके साथ उसी प्रोसेस को देख लेते हैं। सबमिटल्स को आईएफसी ड्राइंग्स हैं, और फिर मजीद जो हमारी आइटम्स हैं, रोड वर्क है, स्ट्रक्चर वर्क है। मैं दो आइटम्स यहाँ पे इंक्लूड करूंगा इस बीओक्यू से एक सैंपल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बिकॉज इफ यू विल इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो मेन आवर मेजर फोकस एरिया इज टू जस्ट take some standard deliverables to make our course more effective, as long as it concerns with the Primavera P6 techniques and concepts of delay analysis. सो यहाँ पे उसी के मुताबिक हमने ये देखे रोड वर्क की आईएफसी ड्राइंग्स, स्ट्रक्चर वर्क की आईएफसी ड्राइंग्स, और उसी तरह से उनकी अप्रूवल, उनको मजीद ब्रेक डाउन कर देंगे। और इसी तरह से प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है जब आप डिजाइन तैयार कर लेते हैं तो जो भी मटेरियल आपने परचेज करना होता है उसका एक प्रोसेस होता है, इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं इसको स्कोप मैनेजमेंट के अंदर दो आइटम्स के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे, बल्क आइटम्स एंड लॉन्ग लीड आइटम्स। ओके, और बल्क आइटम्स को मजीद माइलस्टोन्स, इनका भी माइलस्टोन जनरेट कर लेंगे, सबमिटल्स अप्रूवल्स आ जाएंगे। ये शीट मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, और वन बाय वन इसको प्राइमवेरा P6 के ऊपर जाके करते हैं। सो सबमिटल्स के अंदर आ जाएंगे आपकी, मजीद इसको डिवाइड करेंगे आईएफसी ड्राइंग्स, आईएफसी ड्राइंग्स, और आईएफसी ड्राइंग को मजीद डिवाइड कर लेते हैं हम अपने आइटम रोड वर्क के बारे में जो होंगी, और जो होंगी हमारे स्ट्रक्चर वर्क्स के बारे में, और इसको नीचे ब्रेक डाउन कर लेते हैं। और इसी तरह से अप्रूवल के अंदर भी ये दोनों आइटम्स आ जाएंगी। और इसी तरह से अप्रूवल को ऐड का बटन क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर वर्क। पहले अच्छे तरीके से अपनी समरी तैयार करेंगे, फिर इसके ऊपर वो सारे पॉइंट्स लगाएंगे, ताकि हम स्क्रैच लेवल से जो ऑलरेडी लर्निंग है भी, उस लर्निंग को भी पॉलिश करना है कि हम जो प्लानिंग के अंदर काम करते हैं उनकी लॉजिक्स क्या हैं। जो बंदा डिले एनालिसिस जानता है वो एडवांस लेवल पे एक यानी कि प्रोफेशनल लेवल पे उसको चीजें पता होती हैं, क्योंकि उसको ये भी पता होता है प्लानिंग में ये काम कर रहे हैं तो कल को इस काम को क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली कहाँ पे आ रहा होता है, डिले एनालिसिस के ऊपर। सो ये देखें अप्रूवल्स के अंदर भी ये दोनों चीजें होंगी। मजीद यहाँ से आप इनकी जो एक आईएफसी ड्राइंग्स सबमिटल्स, नहीं नहीं, ये इसके अंदर भी आईएफसी ड्राइंग आना था, मैंने इसके अंदर किया नहीं। ओके, दैट्स ग्रेट। आईएफसी ड्राइंग्स, और इनको मजीद इसका सबनेट बना दें। ये देखें यहाँ से आप इसको उठा के इधर ले जाएं,
रोड वर्क्स को भी आउटवर्ड एरो की मदद से इसका सबलेट बना दें। ठीक है, तो वही सीक्वेंस हो गया जो ऊपर वाला था। एक्टिविटीज विंडो के अंदर जाके देखते हैं, जब हम ये WBS के अंदर सारी चीजें कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती है आपकी एक्टिविटीज विंडो के अंदर, लेकिन सीक्वेंस ठीक नहीं होता। फाइल के अंदर जाके रिफ्रेश करेंगे, सारी चीजों का सीक्वेंस ठीक हो जाएगा। डिफरेंट तरह के कलर्स हैं, इसका मतलब क्या है, हम अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें हमारे, मैं एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, ये हमारे WBS के लेवल्स होंगे। ठीक है, जब हम अपने प्रोजेक्ट को जब हमारे प्रोजेक्ट का सिर्फ एक टाइटल था इस्लामाबाद कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो हमारा 0 लेवल था। उसको हमने जब डिवाइड किया सबमिटल्स के अंदर और कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर, तो वो हमारा लेवल 1 आएगा। जब हम उस सबमिटल को मजीद डिवाइड कर देंगे और कंस्ट्रक्शन फेज को भी मजीद डिवाइड करके अगली हेडिंग आ जाएगी, उसका सबलेट आ जाएगा, वो लेवल 2 होगा। उसको डिवाइड करेंगे लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। इट डिपेंड्स कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड है कि आपने प्रॉपर तरीके से अपने प्रोजेक्ट की WBS समरी तैयार करनी है और फिर आपने एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट करना है। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है। ओके, सो उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली प्राइमरी 6 के अंदर उनके कलर्स हैं। देखिए, सबमिटल एंड अप्रूवल और कंस्ट्रक्शन फेज पहले लेवल के WBS है, इनका ग्रीन कलर है, येलो कलर। सो दिस ऑल रिलेटिंग विद योर WBS लेवल्स। ओके, तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट का जो है वो समरी तैयार करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।